And with these few words, I would like to request Honorable President first to address the meeting. Thank you. Good evening, everyone. So, my respect to our chairman, Maharaj Pradip Kishore Manikko, and Honorable EM. So, he holds the state committee member and presently block chairman of this Durga Chaumani RD block. He is also our people of the state, and I, as a president of Tripura Motha, extending my heartfelt that we have these 4 friends today, and each of us will continue, and we have many other information, and we are trying to proceed and go ahead in whatsoever manner and their wisdom, that we continue in peaceful manner wherever people are resisting undemocratically. We still restrain and try to keep non-violence way of our movement, so that we want to make a state of peaceful coexistence with Manikko, whatsoever has to go and conclude the time. Thank you, friends. I would like to welcome all the leaders who are joining us, especially Mr. Kumar Halam, Mr. Darlong. We have Mr. Mujib Mia, we have Mr. Riang here. The idea, हमारा आइडिया क्या है कि टिपरा मोथा सबके लिए है. टिपरा मोथा has a clear direction that we are fighting for a constitutional solution for our people. And Tripura Motha, till the time we have no understanding in writing with anyone, we are willing to go out and fight on our own. It is a very clear statement. People like Kumar Halam, Mr. Darlong were associated with Mr. Vijay Kumar Rangkol. ये अभी नहीं, पहले भी they were together in TNV. बीजेपी में गए थे, लेकिन आज वो टिपरा मोथा उन्होंने वापस आने का उन्होंने डिसीजन लिया है. क्यों लिया है ये डिसीजन? क्योंकि आज हमारे टिपरासा लोगों को समझ में आ चुका है, पार्टीज ज्वाइन करने से आपका रियल सोल्यूशन का समस्या का हल नहीं निकलने वाला. आज हमें एक फुल एंड फाइनल क्या ऑफर कर रहा है, कॉन्क्रीट में क्या ऑफर कर रहा है, कॉन्क्रीट में चीज क्या ऑफर कर रहा है. अभी तक मुझे सिर्फ 1-2 शब्द ही का बात मालूम पड़ता है. डेवलपमेंट, मोर डेवलपमेंट, मोर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल पैकेज, मोर फाइनेंशियल पैकेज. लेकिन आज तक किसी ने स्पेसिफिकली नहीं कहा है कि हमारे टिपरासा को हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं. हम लोग रेडी हैं, वी आर रेडी. वी मे बी अ स्मॉल पार्टी, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी intimidated by anyone. We may be a small party, but we have a big heart. We may be a small party. तो रेस्पेक्टेड हमारे त्रिपुरा मोथा स्टेट प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल और हमारे संगे आछे हमारे रेस्पेक्टेड हमारे एमडीसी गण, मीडिया बंधुगण और हमारे संगे आछे माइनरिटी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. तो तमी बाबा फैका आं बीजेपी नो हामिया हिंजा केबनो हामिया हिंजा बीजेपी तामो सरकार
साथ सबका विकास सबका विश्वास abong manio 50% manio ar 50% ang minus point rom ang faimani men ongka thansa 70 বছর আঞ্চলিক দল কোনোদিন থানসা আবাস নায়াকো যখন তিনি হানি মালিক তিনি বুবাগ্রা তিনি মহারাজা কাহামো ইসামুং কাহামো চুংজন ফেমা হাই খাইনা উংথু তো চুং সময় নাইসেঙো জোড়া নাইসেঙো জোড়া যখন ফাইনাই जासाई खाया पार्टी जासाई खाया थानसा ई थानसा के आवाज खाइमाया ना नेशनल पार्टी ना विरोधी पार्टी ना आंचलिक दल I'd like to thank Honorable our Chairperson Bubagra of this Modha party, regional party, and our respected our President Modha regional party, and others MDC and the supporters and the workers of these Modha parties. Everybody, I welcome them and thank. Our implement only 30%. More than that, I would like to, by giving that, especially those who are in ADC, for others also, we can look for development. We can depend or not BJP. We brought it, everybody. It may be in different parties, those who are there, but still then all those issues and what promise has been given to the. What I want to say that thing because everybody should know. And another why I am joining in this party because this party name itself Khansa itself speak that where there is unity there is peace, where there is unity there is development, where there is unity there is strength. Then there should be very big strength. And if we go there and support everybody want development, then unless and until we are united, we cannot achieve anything whatever we want. That's why in this party I am interested to join so that everybody can gain and bring that development to the all over Tripura. That is my objectives, and today I am speaking in front of everybody. That is my objectives, vision and goal. There will be, when there is development, there is peace. When there is peace, there is prosperity, love, and everything is there. We are in one family life, brotherhood. All these things will be achieved in the future to come. That's why in BJP, I don't say that particularly I don't have any enemies or with anybody, anything, I don't have any problem. But still then, if we look the work of the parties and how it is going on, so you cannot lie on that. Whatever the promise is, all in vain. So what is the use of to be in that big post or in the state president if you are given also, nothing will improve. So it is only time waste. Due to that only today, I am very much grateful and happy to be in our midst and accepting us to be the worker, to work hard, to give this opportunity to be. Thank you very much. If there is any question, please you can ask. Dialogue has raised many allegations against the Saffron party. We have seen that 2 days back, Union Minister of State, Pratima Bhumik, he has said that when people started getting the services that were long due, Pradut Manshi is trying to make raise the CPI. He also turned leadership as DVC. What do you want me to say to Pratima Bhumik ji? She's an MP and a minister. So, if I am demanding something which is unconstitutional, shouldn't I be arrested? If I am asking something which is breaking the law, then I should be arrested. There should be an FIR against me for demanding Greater Tripura land. But everyone knows that my demand is within the framework of the Constitution of India. Unless the government of India, अगर कानून हिंदुस्तान का सरकार एक नया कानून बनाता है कि आप ये डिमांड
त्रिपुरा में नहीं उठा सकते हैं, पूरा इंडिया में उठा लो, लेकिन त्रिपुरा में अगर आप उठाएंगे तो आपको जेल में डाला जाएगा। जब तक ये नया कानून पार्लियामेंट पास नहीं करता है, मेरा अधिकार बनता है कि मैं अपने संवैधानिक अधिकार के लिए डिमांड करूं। और सीपीएम क्या बोला उन्होंने? You are making way for the CPM. आई एम मेकिंग वे फॉर द सीपीएम। सीपीएम से सबसे ज़्यादा फाइट किसने किया है? सीपीएम ने तो आज तक प्रतिमा भौमिक के पिताजी या सीपीएम ने तो आज तक प्रतिमा भौमिक के ग्रैंडफादर को कभी अटैक नहीं किया। सीपीएम ने मेरे परिवार को अटैक किया। तो जब तक प्रतिमा भौमिक को ये बात मालूम है तो ये बात उसको उठाना हल्का बात है। सीपीएम ने अपना पूरा राजनीति मेरे फैमिली को अटैक करके किया है, प्रतिमा भौमिक के फैमिली को तो कभी अटैक नहीं किया। तो मैं समझूं कि उसके संग सीपीएम का अंडरस्टैंडिंग है? नहीं ना। तो ये सब बात पॉलिटिक्स में, मंच में आदमी लोग बहुत स्टेटमेंट देते हैं। अभी उनको ये सब बोलना पड़ेगा क्योंकि उनको अपना पार्टी को भी एक रखना है, वो उनका कंपल्शन है, वो उनको बोलने दीजिए। मैं अपने लाइन में हूँ, मैं उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता। Another question is, many people living in ADC area, they are facing severe water crisis. So what steps are being taken from the Today we had a meeting with the Minister for DWS, Sushant Chaudhary. We discussed many things regarding drinking water. YTF जो हमारा तिपरा मौथा का यूथ फ्रंट है, हमने पिछले एक महीने में 1,12,000 लीटर पानी डिस्ट्रीब्यूट किया है गांव-गांव में अपने तरफ से। और आज जब रिव्यू मीटिंग रखा गया, सुशांत चौधरी द मिनिस्टर वाज देयर इन एडीसी इन कुमुलुंग, हमने बात किया कि आज जब हमारे पास फिगर्स आया है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ एडीसी में ड्रिंकिंग वाटर नहीं है घर में। उन्होंने खुद स्वीकार किया है और काम करना है। तो इसके लिए हम लोग ने कोऑपरेशन के लिए बात किया है। ड्रिंकिंग वाटर हमारे अंदर नहीं आता है एडीसी के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तभी भी हमने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है, सेक्रेटरी भी थे आज, कि आप हमें टैंकर्स का थोड़ा सुविधा दीजिए, कहीं में हमारा वाटर बॉडीज बनाने के लिए थोड़ा सुविधा दीजिए, क्योंकि आप एडीसी को अलग करके त्रिपुरा नहीं चला सकते। एंड द मिनिस्टर ऑन हिज पार्ट अग्रीड that we should work together. Minister, earlier also in the press conference, he claimed that more than, I think, 300 tankers are working. He accepted that all parts are. Do you think under the Jal Jeevan mission, how the work is going on? The government of Tripura's figure says that 50% of the household do not still have water. अब हाँ 50%, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का खुद का डेटा आज ये कह रहा है कि एडीसी में सिर्फ 50% लोगों को घर में नल है। अब उस नल में पानी भी आ रहा है कि नहीं वो भी हमको देखना है, लेकिन ये उनका खुद का आंकड़ा बोल रहा है। अब आप देखिए, कोई प्यासा है, इतना गर्मी है, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आप 4 महीने के बाद आपके घर में पानी आएगा। पानी तो आज चाहिए, वाटर इज़ लाइफ। और मैंने DWS मिनिस्टर को, और उन्होंने भी मेरा बात एग्री किया है कि पानी के नाम में, पीने के पानी के नाम में राजनीति नहीं होना चाहिए। प्यास सबको लगता है, प्यास सबका बुझना चाहिए, एंड वी आर देयर टू हेल्प एनीवन व्हेन इट कम्स टू वाटर। जब कोविड हुआ हमने एक संग काम किया, अब पानी का ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम है, हमें एक संग काम करना चाहिए। कुछ चीज़ राजनीति से ज़्यादा बड़ा होता है, तो मैं इसमें पॉलिटिक्स को लाने का कोशिश भी नहीं करूँगा। मैंने अपने YTF वॉरियर्स को कहा है कि जब तक पीने का पानी गांव में नहीं आता, आपका काम है कि जाकर गांव-गांव में पानी डिस्ट्रीब्यूट करें। पैसा हम देंगे, पानी का प्रयोजन हम करेंगे। आप अभी हमारे लोगों को मत पूछो कि कौन तिपरा है, कौन CPM है, कौन BJP है, कौन कांग्रेस है, कौन तृणमूल है, कौन IPFT है। आप जाकर उनको पानी दीजिए, पीने का पानी दीजिए और अपने एडीसी एरिया में काम कीजिए। And commitment given by when this They will issue a few office orders 2 दिन के बाद. We will wait and see what is their commitment. Let it come in writing. Then I will share it with the media, and I think even the state government will share it with the media. आपके इंटरव्यू के ऊपर कुछ कंफ्यूजन था. Can you make it clear in what context it was given? And another, you had after that appeal for other political parties also to come together. हाँ. What has been the response? Response is very good. रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड, और मैं आशा करता हूँ कि IPFT जो जिसका डिमांड भी हमारा जैसे ही है,
99.99% हमारा दोनों का डिमांड एक ही है। तो मैंने उनको कहा है कि आप अलग क्यों डिमांड कर रहे हैं, हम लोग सब एक होके आते हैं, बात करते हैं। मैं मेवाड़ को बचपन से जानता हूं, मैं उनको रिस्पेक्ट भी करता हूं, मैं उनके एमएलए को भी जानता हूं। आपको किसी को चिंता करने का दरकार नहीं। हम लोग सब एक संग बैठकर एक आवाज़ अपने लोगों के लिए दिल्ली में जाकर बात करते हैं। इसमें कोई शर्म का बात नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। पहले अपने दफा को सामने रखिए, अपने कम्युनिटी को आगे रखिए, अपने डिमांड्स को आगे रखिए। पॉलिटिक्स चलते रहेगा, लेकिन अपने लोगों का सुरक्षा के लिए हमको एक संग एक प्लेटफॉर्म में आकर बात करना चाहिए। उनका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिन में वो अपना डिसीजन जल्द से जल्द लेंगे। What about Delhi part? Are you trying to contact the Home Minister? मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ होम मिनिस्टर को, आई विल राइट ए लेटर, और वो लेटर को भी हम पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि हमारा जो डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, आप लोग उसको उसमें हमको निमंत्रण दीजिए। हम लोग राइटिंग में ये बात करना चाहते हैं। हम पब्लिक को अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं, हम पब्लिक को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो जो भी होगा मीडिया के सामने होगा, पब्लिक के सामने होगा, कोई साइलेंट या सीक्रेट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और रहा बात माय स्टेटमेंट का, मैंने ये कहा था कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड करते हैं तो कोई बोलता है आप 1300 करोड़ ले लो, 1500 करोड़ ले लो, 2000 करोड़ ले लो। तो ये 2000 करोड़ किसके पॉकेट में जा रहा है पैसा? तिपरासा के पास तो नहीं जा रहा है। ये पैसा जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के पास या पॉलिटिशियन के पास। तो मैंने कहा था कि आप अगर सीरियस हैं तो आप नौकरी अनाउंस कर दीजिए 1 साल के अंदर, तब हम बात करेंगे। लेकिन आप वो अनाउंस नहीं करते, आप सिर्फ पैकेजेस अनाउंस करते हैं। वो पैसा 1949 के बाद एडीसी में, एडीसी तो था नहीं, लेकिन त्रिपुरा में जनजातीय एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिगर्स निकाल देंगे, बोलेंगे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। लेकिन वो 2 लाख करोड़ कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर के पास जा रहा है, पॉलिटिशियन के पास जा रहा है। तो मैंने कहा था कि वो 2 लाख करोड़ आप बेफजूल में ना खर्च करके आप नौकरी दे दो, तब हम बोलेंगे कि चलो आपका सीरियस है। लेकिन एक लाइन को आधा, आपने इंटरव्यू लिया था, एक लाइन को आधा लेकर सोशल मीडिया में, आपको मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, यू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग, लेकिन उसको काट के किसी का आईटी सेल कहीं में और चलाकर, हम लोग अनपढ़ गवार नहीं रहे। जो अभी आपने किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ऑनरेबल मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, आप डिबेट कर लीजिए, मैं रेडी हूँ कि हमारा डिमांड इलीगल है कि नहीं, आप डिबेट कर लीजिए। और ये कि मुझे सांप्रदायिक बनाया जा रहा है, मैंने आज तक नहीं कहा, मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूँ, अगरतला में बैठ के आपको बोल रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं कहा कि बंगालीज गो बैक टू बांग्लादेश। जिसने कहा वो उनके पार्टी में है, मैंने आज तक नहीं कहा। मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं हिंदू बंगाली को बांग्लादेश वापस, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, मैंने आज तक वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, किसी और ने किया, वो उनके पार्टी में है। तो मुझे ये फैमिली जो है, शेख हसीना ने हमें सम्मान दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें सम्मान दिया। जब युद्ध हुआ, जब कंचन प्रभा देवी ने शरणार्थी को रखा, हमने रखा। मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, मैं क्यों हिंदू बंगाली को खिलाफ जाऊँ? लेकिन मेरा हिंदू धर्म क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं, मुसलमान के खिलाफ नहीं, बुद्धिस्ट के खिलाफ नहीं है। तो ये जो डिवाइड एंड रूल करते हैं, वो लोग का राजनीति अलग है और हम लोग महाराजा वीर विक्रम के सिद्धांत में चलते हैं। तो ये जो पूरा पोर्ट्रे किया गया है मीडिया के सामने कि हम लोग एंटी बंगाली है, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आज तक मैंने कभी भी बंगाली कम्युनिटी के खिलाफ या कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ मैंने आज तक कुछ नहीं कहा और ना कहूंगा भी। ये राजनीति किसी और ने किया और उस राजनीति जिसने किया उसको आपने अपने संग रखा है। तो जनरल पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए आज जो हमारा डिमांड है। मैंने हताई कतौर में, बारामूला में मैंने रोड ब्लॉकेट नहीं किया। जब से एडीसी पावर में आया है, कहीं में भी एक भी बंगाली हो, उसके घर में, या मुसलमान हो या हिंदुस्तानी हो या किसी के घर में भी अत्याचार नहीं हो। आज तक हम ने एक दिन भी बंद का कॉल नहीं किया।
तिपरा मोथा ने आज तक एक बार बंद का कॉल नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसका दुकान है, जो डेली लेबरर है, उनको बहुत कष्ट होता है। मैंने क्या बोला है? हमने कहा कि गिव अस मोर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। मैंने नहीं कहा है कि बंगाली का नौकरी निकाल के तिपरासा को नौकरी दे दो। मैंने कहा कि बंगाली का नौकरी भी दो, हमें तिपरासा को नौकरी दो। मैंने कहा कि हमारे गांव में पानी दो। मैंने नहीं कहा कि उस बंगाली के गांव के नल को बंद करके तिपरासा विलेजेस में पानी दो। मैंने कहा वहां भी पानी आना चाहिए और यहां भी आना चाहिए। तो ये जो पॉलिटिक्स ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, ये प्रोपेगेंडा त्रिपुरा के लिए अच्छा नहीं है। और मीडिया को भी निडर होकर, ब्रेव होकर आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए कि मैंने आज तक अपने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी को, जिसको व्यक्तिगत तौर से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने आज तक उसको बांग्लादेशी नहीं कहा, किसी और ने कहा। तो आप सवाल उनसे पूछिए, मुझसे मत पूछिए। मुझे सर्टिफिकेट देने का कोई दरकार नहीं है। मैं त्रिपुरा में बंगालीज, तिपरासाज, मणिपुरीज, मुस्लिम्स, हिंदुस्तानी, कोई भी कम्युनिटी हो, बुद्धिस्ट, सबको एक संग देखना चाहता हूं। और हम लोग कभी भी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते। और जो लोग बोल रहे हैं कि मैं कहां था 20 साल पहले, वो लोग कहां थे 20 साल पहले? जो लोग बोलते हैं कि मैं त्रिपुरा में नहीं था, तो मैं तो त्रिपुरा में नहीं था, और लोग भी त्रिपुरा में नहीं थे, आज है त्रिपुरा में। उनका पार्टी कहां था 20 साल पहले? हम लोग फाइट कर रहे थे सीपीएम से, 2003 हो, 2008 हो, 2013 हो। हां, हारे, लेकिन हम तो फाइट कर रहे थे। उस समय वो लोग क्यों नहीं फाइट कर रहे थे? तो ऐसा आरोप करना विदाउट होमवर्क, और वरना आपको डिबेट करना है तो आ जाइए, न्यूट्रल वेन्यू में डिबेट करना है तो आई एम रेडी फॉर अ डिबेट। पब्लिक डिबेट करते हैं, न्यूट्रल वेन्यू में करिए डिबेट। हम अनपढ़ गवार नहीं हैं। आई हैव ऑल्सो स्पोकन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आई एम ऑल्सो गोइंग टू लंडन टू स्पीक at Oxford. I am also meeting the British parliamentarians. I am speaking at the Bridge India conference. I am not an uneducated person. So have a civilized debate with me. We are ready, respectfully. I will be very respectful. But have a civilized debate. Do not throw allegations which do not stick. Sir, I have one more question about the recently the Chief Minister has tweeted that he is not satisfied the way the rehabilitation of the young people are doing. Are you aware of that? I am aware of it. He has also met the Home Minister. The Home Minister and the Chief Minister of Tripura, the Chief Minister of Mizoram, myself, we worked very hard for the rehabilitation of our Bru brothers and sisters. Today, the Bru people have not been given proper rehabilitation. This rehabilitation has to be made all right. This cannot be linked with elections. A Bru person who was a domicile of the state had to leave because of Dumbur, had to leave because of riots, has a traditional link with Tripura, has to be given proper rehabilitation. So the Chief Minister, I appreciate that he said that Bru को अच्छी तरीके से रहना चाहिए, I appreciate. लेकिन rehabilitation process में चेयरपर्सन कौन है वो आप थोड़ा फाइंड आउट करके मालूम कर लीजिए। और मुझे लगता नहीं है कि आई थिंक बीजेपी का इंटरनल प्रॉब्लम है और वो मेरे ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप बीजेपी से पूछिए। एनी लास्ट क्वेश्चन? ओके, बेलाई बेलाई नो हम बाय, आई वेलकम एवरीवन। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि त्रिपुरा मोथा विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, एंड आई अपील टू ऑल कम्युनिटीज इन त्रिपुरा, प्लीज लिव इन पीस, वी वांट डेवलपमेंट, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन। बेलाई नो हम बाय। बुरे बोल इनको वहाँ में
अपना हाँ अरे वेरी वेरी चल ये आपका थैंक यू आज दो लोग ज्वाइन किया था हाँ तो आपके साथ एक साथ खड़ा होने के हाँ हम लोग सब खड़ा हाँ हाँ फ्लावर उठाइए फ्लावर थैंक यू जय हिंद जय हिंद